اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر سرینواس نے ریاستی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ حکومت کووڈ کی تیسری لہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں 27,141 بیڈز ہیں، جس میں 10,244 بیڈز کو آکسیجن کے ساتھ تیار رکھا گیا ہے۔ نیلوفر اسپتال سمیت دیگر گورنمنٹ اسپتالوں میں بچوں کے لیے خصوصی 6,000 بیڈز تیار رکھے گئے ہیں۔ بچوں کے علاج کے سلسلے میں کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پرائیویٹ اسپتالوں میں کورونا کے علاج و معالجوں کے لیے اعظم ترین شرحیں مقرر کی ہیں اور ان شرحوں کے حساب سے ہی کام ہوگا۔ اس خصوصی میں محکمہ صحت و طبیعت کی جانب سے GO نمبر 40 جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے مقررہ علاج کے اخراجات کی شرحیں اس طرح ہیں: جنرل وارڈ میں آئسولیشن کے لیے ایک دن معائنوں کے لیے 4,000 روپے، ICU میں فی دن 7,500 روپے، وینٹیلیٹر کے ساتھ ICU کے لیے یومیہ 9,000 روپے، PPE کٹ کی قیمت 273 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے، HRCT اسکین 1,995 روپے، ڈیجیٹل ایکس رے 1,300 روپے، IL6 اور 1,300 روپے۔ اس طرح سے جو ڈائٹ 300 اور CRP 500 روپے، پروٹوکول سویٹزرلینڈ 1,400 روپے، فیلٹ 400 روپے، LDH 140 روپے، یعنی تمام چیزوں کی جو حد ہے اور جو قیمت ہے، جو اس کے چارجز ہیں، وہ طے کر دی گئی ہیں۔ اور اس طرح سے حکومت کا یہ حلف نامہ ہے، یہ جواب ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے۔ اور خبروں آگے بڑھتے ہیں۔ صدر SIO تلنگانہ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے ریاستی حکومت سے اردو زبان کو مرحلہ وار طور پر ختم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈگری کالجوں میں داخلے کی ویب سائٹ دوست میں اردو میڈیم ڈگری کورسز میں داخلوں کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان ریاست کی سرکاری اور دوسری سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی زبان ہے۔ اتنی بڑی آبادی کی مادری زبان کے ساتھ امتیازی سلوک تشویشناک ہے۔ مخلوعہ نشستوں کو پر کرتے ہوئے اساتذہ کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے حکومت اردو میڈیم میں داخلوں کو ہی بند کر رہی ہے۔ 2 سال قبل اردو میڈیم میں BCom BSc میں داخلوں کو بند کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے اردو میڈیم میں داخلوں کا فی الفور آغاز کرنے اور اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں کو پر کر کے طلباء کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں اردو میڈیم میں کئی سارے کورسز پہلے ڈگری میں آفر کیے جاتے تھے، اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو کورسز آفر ہوتے تھے اس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے بالکل سسٹمیٹک انداز میں اردو میڈیم اور تیلگو میڈیم ہو، ریجنل لینگویجز کے اندر تعلیم کو سسٹمیٹک انداز کے اندر کم کیا جا رہا ہے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے کیریئرز کے ساتھ اور تلنگانہ اسٹیٹ کے جو اس کے جو فاؤنڈیشنز ہے اس کے خلاف میں نہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اردو میڈیم میں اور تیلگو میڈیم کے اندر بھی اور بھی کئی سارے ہزار ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی کموڈٹی نہیں ہے کہ اشیاء کا ڈیمانڈ کم ہو گیا تو اس کا پروڈکشن ہم کم کر دیے ہیں، بلکہ تعلیم ایک تہذیب کی، تمدن کی ایک بالکل فاؤنڈیشن سٹون ہوتا ہے، اور اس کو ان بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ کم اس کورس میں داخلہ لے رہے ہیں۔ وہ اس کو پریزرو کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آیا ہزاروں اسٹوڈنٹس ہوں یا ایک ہی اسٹوڈنٹ ہو۔ تلنگانہ اسٹیٹ جن آئیڈیلز پر ٹھہرا تھا اس کے بالکل خلاف ابھی تلنگانہ اسٹیٹ جا رہا ہے، تو اس موقع پر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو پوسٹ فیکلٹی کے ہیں جس کو ابھی پر نہیں کیا گیا، کئی سالوں سے پینڈنگ پوسٹ ہیں، تو ان پوسٹ کو فوراً سینکشن کیا جائے، پوسٹ کے اوپر ریکروٹمنٹ ہو، یہ بھی ایک اہم ڈیمانڈ SIO گورنمنٹ سے کرتے ہیں۔
और आगे बढ़ते हैं। कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी मौलाना सैयद हामिद हुसैन शतारी ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत को बचाने के लिए अवामी जद्दोजहद में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कदीम इमारत के इन्हदाम पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान की मजम्मत की। उन्होंने उस्मानिया अस्पताल की इमारत मुनहदिम करने के KCR हुकूमत की साजिश करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR नहीं चाहते कि कोई भी निज़ाम दौर की इमारत बाकी रहे। हामिद हुसैन शतारी ने KCR को भी तनकीद का निशाना बनाया। हॉस्पिटल के विखार को ठेस पहुंचा दिया। उस्मानिया हॉस्पिटल 100 साल कदीम इमारत है, हैदराबाद की जो पहचान है और ये हेरिटेज बिल्डिंग है। अफसोस इस बात का है कि 1970 से आपकी जमात के कारपोरेटर्स बल्दिया में कारगुजार है। 17, 19, 21 कारपोरेटर थे। कभी आपको ये शऊर नहीं पैदा हुआ कि हैदराबाद की तारीखी इमारतों की हिफाजत की जाए। हमारा अपना एहसास ये है कि आप KCR के साथ आपकी मिली भगत है। KCR जो है आपसे पहले कुछ बोलना चाहता है ताकि आप बोल दें, उसके बाद वो पॉलिसी पे अमल करें। आप हेरिटेज को नज़रअंदाज करके माहिरीन तामीर राज से आप मशवरा लें कि हेरिटेज को बरकरार रखते हुए आप जो है उस्मानिया हॉस्पिटल की एक्सटेंशन के लिए और उसकी कितने ही 10 मंजिल, 8 मंजिल, 6 मंजिल आप बना सकते हैं, लेकिन आप जो है वो बनाने पे तवज्जो नहीं दिए, बल्कि आपका जो रूए सुखन है वो इंतहाई गैर इत्मीनान बख्श है। दवाखाने की जो हालत हो गई है ये हमारे अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। गुजारिश ये है कि असदुद्दीन साहब से आप अपने रवैये को तब्दील कीजिए। KCR साहब ये चाहते हैं कि हैदराबाद से मुसलमानों की जो इमारतें हैं उसका नाम मिटा दिया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी वो नाम मिटा देना चाहते हैं। कि अवाम से जो जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप जो जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाए। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना ने उस्मानिया जनरल अस्पताल में नई इमारत तामीर करने की मांग की है। डॉक्टर रूपेंद्र राव, डॉक्टर तपाड़िया, डॉक्टर N कृष्णा रेड्डी, डॉक्टर कृष्णा मूर्ति ने कहा कि हेरिटेज इमारत का बहाना करके उस्मानिया अस्पताल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हुकूमत 1 एकड़ पर मौजूद हेरिटेज इमारत को छोड़कर बाकी 25 एकड़ पर नई इमारतें तामीर कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल की तरक्की और अवामी मफाद में फैसला करने की हुकूमत से मुतालबा करते हैं। హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఒక్కటే ఏకర్ ఉంది. ఆ ఒక్క ఏకర్ని మనం పక్కకు పెట్టేసి మా కంటెన్షన్ ఏముందంటే 25 ఏకర్లో మంచి బ్రహ్మాండమైన 2000 బెడ్స్ హాస్పిటల్, మనం అందరం దాని మీద వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. ఇది మన ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, ఎంత మంచిగా ఉండాలంటే నేను కూడా రేపు అక్కడ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా, అట్లుండాలి. మన అందరం కలిసి వీ మస్ట్ ఫైట్ ఫర్ అ గుడ్ హాస్పిటల్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ. మనం గర్వంగా చెప్పాలా, ఇది మా హాస్పిటల్, నేను ఇక్కడ చదివినా, నేను ఇక్కడ 12-13 ఇయర్స్ ఉన్నాం. We are the official office bearers. We have filed a petition in the court. We have given a representation to the government. We have given a health minister. और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 26 जून को अजला कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन में 11 बजे दिन इजलास मुनक्किद होगा। रियासत में पल्ले गांव की प्रगति पट्टा तरक्की शहरों की और प्रगति प्रोग्राम पर की तरक्की अमलावरी का जायजा लिया जाएगा और अहदेदारों को खुसूसी हिदायत दी जाएगी। इस इजलास में कलेक्टर्स के साथ साथ एडिशनल कलेक्टर्स, पंचायत राज, देही तरक्की, महकमा जात के वज़रा, अहदेदार, तमाम महकमा जात के आला अहदेदार भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों में सरसब्जी विशावादी में इजाफा के लिए शुरू किए करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। और अगली खबर, हैदराबाद में 15 महीनों बाद MMTS ट्रेनें ट्रैक पर वापस आ गईं। आलमी वबा कोरोना की वजह से गुज़श्ता साल 23 मार्च से MMTS खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। आज सुबह 7:50 से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेन शुरू की गई। इब्तिदा में 10 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि 1 जुलाई से मजीद 15 ट्रेन की खिदमात की इजाज़त रहेगी। 10 ट्रेन में 3 ट्रेनें फलकनुमा और लिंगमपल्ली के दरमियान चलाई गई और उर्दू खिदमात हैदराबाद ता लिंगम
2 खिदमात जो है वो हैदराबाद से लेकर लिंगमपल्ली चलाई गई हैं और इस सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे ने ट्रेन इस्तेमाल करने वालों से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि महफूज सफ़र को यकीनी बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। मुसाफिर को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड के प्रोटोकॉल जैसे समाजी फासला लाजमी है, मास्क के इस्तेमाल और वक्फे से सैनिटाइज़र पर की इस्तेमाल करते रहें। तेलंगाना पुलिस लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को उनके मालकिन के हवाले करने की तैयारियां कर रही है। डीजीपी ऑफिस से तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपीओ और पुलिस कमिश्नरेट्स को सर्कुलर जारी किए जाने की इत्तलात हैं। जुर्माने की अदायगी के बाद मालकिन को जब्त शुदा गाड़ियां हवाले की जाएंगी। पुलिस स्टेशन से गाड़ियों के मालकिन को फ़ोन पर पैगाम रवाना किया जाएगा जिसमें जुर्माने की रकम की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। अलबत्ता संगीन नौइयत के मामलों में गाड़ी सवारों को अदालत से रुजू किया जाएगा। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन के बाद ही मालकिन को वापस मिलेंगी। तेलंगाना के जिला यादाद्री भोंगिर में सड़क हादसा पेश आया है। मछलियां मुंतकिल करने वाली गाड़ी मछलियां सड़क पर गिर पड़ी और मकामी अफराद ने सड़क से मछलियां उठाकर वहां से ले गए और लिंगोजीगोड़ा में बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी पर से तवाज़ुन खो दिया जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। हादसे के सबब गाड़ी में रखी केट मछलियां बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे गिर पड़ी। सड़क और इसके किनारे मौजूद मछलियों को देखकर मकामी अफराद दौड़ पड़े और इन्हें अपने घरों को ले जाने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने इन मछलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। मछली की यह किस्म इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। यह मछलियां तेलंगाना के नाकटपल्ली से कर्नाटक के बीदर मुंतकिल की जा रही थीं। तेलंगाना के जिला वनप्रति के मोजा बंडा रवि पारकोला की सरपंच नरसिम्हा और इनका पोता मकान की छत गिरने से हलाक हो गए। 65 साला नरसिम्हा 10 साला योगेश्वर एक कमरे में सो रहे थे। सुबह इनकी लाशें मलबे से मिली। मकामी अफराद ने मलबे को हटाकर लाशों को मिट्टी से बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी कोरोना से मुतासर मुल्क भर के अजला में खिदमात अंजाम दे रही हैं। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना ताउन पेश करें और वैक्सीन की अहमियत से लोगों को वाकिफ कराएं। चलिए देखते हैं कि आज हमारी संजीवनी गाड़ी कहां पर है।